Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will discuss about the staffing, which is essential part of company or any business organization. In today's session we will cover some various topics like meaning and importance of staffing, what various steps are involved in the process of staffing. We will discuss the meaning of recruitment, their process, their selection. We will discuss various methods of training, and we will discuss the methods of performance appraisal, compensation calculation, promotion and transfer. So first of all, why staffing plays an important role in any organization, whether it is sole proprietorship, partnership or joint stock company. As you are quite aware that joint stock company is basically a collaboration and legal obligation of Companies Act 1956. जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस सेशन में हम स्टाफिंग एंड उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की डिस्कशन करेंगे. सो स्टाफिंग बेसिकली इट्स अ मैनेजरियल फंक्शन, जो कि मैनेजरियल फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स इसको एक कोर एलिमेंट मानते हैं. सो स्टाफिंग it's a managerial function of employing and developing human resource for carrying out the business, managerial and non-managerial activities. Organization की जो different activities होती हैं, चाहे वो managerial level की हो, non-managerial activities हो, उनको run कराने के लिए, उनकी methodology को setup करने के लिए there is a need to recruit the human resources. That is also known as personnel management. It involves that how can we determine the manpower, because manpower plays a vital role. जो हमारे human resources हैं वो एक asset की तरह organization की methodology को contribute करते हैं, उनके process में, उनके structure में, organization की performance को implement करने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए वो एक इम्पोर्टेंट की कंट्रीब्यूटर्स की तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स दैट हाउ कैन वी डिटरमिन द मैन पावर, their recruitment process, their methods, their selection, their training and developing the people for various positions created in the organization. Organization को रन कराने के लिए human being की requirement होती है और इस requirement के थ्रू आप अपने task को, अपने certain goals को एक successfully form में achieve कर सकते हैं. So, we will discuss the meaning. Now we will discuss the HRM, Human Resource Management. As you are quite aware that management एक ऐसी टेक्निक है, प्रबंध एक ऐसा शास्त्र है जिसके थ्रू आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज को, प्रैक्टिसेस को, प्रोसेस को, प्रोग्राम्स को साइंटिफिक मैनर में, सिस्टमैटिक प्रोसेस में मैनेज करते हैं. इट्स अ साइंस टू डील्स टू मैनेज द resources, programs, policies. It's a plan of action. So, in HRM, human resource management is a key contributor of any organization. It plays a vital role, एक important role play करता है. So, human resource को हम multidisciplinary approaches में implement कर सकते हैं. It applies in the disciplines of economics. Economics एक study है जिसमें आप scarce resources को manage करते हैं, जिसको आप अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं. Like जो भी वर्कर्स हैं उनका वेजेस का डिटर्मिनेशन, मार्केट फोर्सेस, वेदर इट इज परफेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, इम्परफेक्ट, रिसोर्सेस क्या है हमारे पास अवेलेबल, इनकी स्टडी को आप ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में कंट्रीब्यूट करते हैं. साइकोलॉजी इंडिकेट्स द ह्यूमन साइकोलॉजी. जो भी एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी है वो डिफर करती है.
उसमें उसका मोटिवेशन फैक्टर, उसका परफॉर्मेंस, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, उसका नीड फॉर अचीवमेंट, सक्सेस, ये सारी वेरी करती रहती हैं। सो सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कल्चर, जो भी लॉज हैं, उन लॉज में आप मिनिमम वेजेस को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, लेबर के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, कैसे आप एचआर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारा हम एचआरएम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की कंपैटिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो बीइंग अ रिक्रूटर या बीइंग अ ट्रेनी आपको सबसे पहले एचआर इमीट करनी होती है। एचआर एज ए कोई भी एचआर प्रोफेशनल, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो कि एक रिसोर्स है जो वेल्थ को इंक्रीज करते हैं, उनकी परफेक्ट प्लानिंग करे। उसका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उनकी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट, फर्दर बेनिफिट्स के लिए उनका कंपनसेशन पैकेजेस कैसे डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और जो लेबर रिलेशन है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, उनमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। इसके थ्रू आप एचआरएम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो एज यू कैन सी इन माय दिस स्लाइड, एचआर प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैन पावर एक स्टॉक है, एक इन्वेंट्री है, एक एसेट की तरह वर्क करता है, एक संपत्ति है जिसको प्लान करना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी हैव टू चेक, वी हैव टू असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो करंट वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका निर्धारण करना। देन वी हैव टू असेस फ्यूचर रिसोर्स नीड्स, हमें फ्यूचर में कितनी आवश्यकता हो सकती है, कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे कि अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। देन आप जो भी हमारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो कि हमारे गैप हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ हमारे करंट एम्प्लॉयज हैं 50 और हमें फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है 80 की, सो इट मीन्स कि जो लूप होल्स हैं, जो गैप्स हैं, वो 30 के हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन 30 मैन पावर जो कि एक एसेट की है, एसेट की तरह वर्क करते हैं, इनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए, फर्दर कंट्रीब्यूशन के लिए इनको रिक्रूट करना इज अ बिग चैलेंज। सो एचआर प्लानिंग help us to find out the gap between standard and actual. अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे अब इस वॉइड को, कैसे इस एरियाज को रिकूप कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम सर्टेन फैक्टर्स लाइक इंटरनल लेबर सप्लाई, जिसके थ्रू जो भी स्किल इन्वेंट्रीज हैं, जो सक्सेशन प्लानिंग है, स्किल इन्वेंट्रीज, जो भी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स का, दैट शुड बी स्किल्ड। सक्सेशन प्लानिंग एचआर का एक नया टर्म है जिसके थ्रू जो भी आपने टास्क असाइन किया हुआ है बिटवीन एम्प्लॉयज, फॉर सपोज अगर वो जो पर्सन है जिसको आपने टास्क असाइन किया है, वो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है और वो पर्सन क्विट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, देन उसके टास्क को डेलीगेट करने के लिए आपने एक ट्रेनी ऑलरेडी असाइन कर रखा है। इस टर्म को आप सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे कोई हर्डल्स ना क्रिएट हो। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, फर्दर जो भी, ऐसे फॉर सपोज आप मशीनरी को परचेज करते हैं, उसी तरीके से जो भी आपका ह्यूमन बीइंग है, रिप्लेसमेंट प्लानिंग उनकी आइडियाज को, उनकी जो भी उनका मोटिवेशनल लेवल है, जो भी उनके की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको और इम्प्रूव करने के लिए आप उसको रिप्लेस करने के लिए प्लानिंग करते हैं। चार्ट्स बनाते हैं कि हमारे स्टाफिंग की सिचुएशन क्या है, कितने, कुछ ऐसे क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे स्किल्ड पर्सन्स होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, उनको हम रिटेन करके चलते हैं, दैट इज नोन एज रिटेंशन एंड एक्सपल्शन ऑल्सो। रिटेंशन एंड एक्सपल्शन स्ट्रैटेजी को कैसे हम रिकूव करते हैं, कैसे आपकी प्लानिंग्स है, ये सारे आपके एचआर प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि वेरियस इंटरनल एक्टिविटीज का पार्ट है। एक्सटर्नल लेबर सप्लाई, जो भी हमारे मैन फोर्सेस हैं, जो भी हमारे मैन पावर हैं, वो एक्सटर्नली कैसे सप्लाई को इम्प्लीमेंट करते हैं। सप्लाई हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप पे चलती है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन्स फॉर सपोज 20, एंड जो भी आपकी जो गैप है वो उसमें वहां पे निल है। सो एक्सटर्नल लेबर सप्लाई, दिस इज ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल while designing an HR planning. Next, job analysis. सबसे पहले being an HR, there is a need to analyze the job. So, while doing job analysis, there are some key elements like tasks, responsibilities, duties, and these are the methods of job analysis. Which kind of topics we can cover?
First of all, knowledge, skills, abilities, एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कैसे आप मोटिवेट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्राइजल कैसे करते हैं, जो भी स्टार परफॉर्मर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, कंपनसेशन क्या आप देते हो, सेफ्टी एंड हेल्थ पे कैसे उनको उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना है, एचआर की लेबर रिलेशनशिप कैसे हैं, जितने भी आपके लीगल कंसिडरेशंस हैं, जॉब एनालिसिस है, उन सारी चीजों की को हैंडल करने की, मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एचआर की होती है. नाउ दिस इज बेसिकली अ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस के लिए मतलब किस क्वालिटी की, किस स्किल्ड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है. जॉब बेसिकली ग्रुप ऑफ टास्क हैं जिसको परफॉर्म करना और जिससे कि आप कलेक्टिवली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज जॉब. पोजीशन फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, देयर शुड बी अ सम टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन. सो कलेक्शन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक पर्सन परफॉर्म करता है और उसकी जो पोजीशन होती है वो हर इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करती है. जॉब एनालिसिस इंपॉर्टेंट टर्म. जॉब एनालिसिस बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें आप सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्किल्स, ड्यूटीज एंड नॉलेज की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने कैसे असाइन होनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जॉब डिस्क्रिप्शन से अचीव कर सकते हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स मिनिमम क्राइटेरिया टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, दैट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, चयन. सो हाउ कैन वी रिक्रूट द पर्सन मीन्स प्रोसेस क्या है, लोकेटिंग, आइडेंटिफाई करना, कैपेबल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना, उनसे हमारी फ्यूचर और प्रेजेंट की नीड्स को मीट आउट करना, जो भी कॉर्पोरेशंस की क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको ब्रीफ आउट करना, किन सोर्सेस के थ्रू, इंटरनल चैनल्स के थ्रू, एक्सटर्नल चैनल्स के थ्रू आप कैसे रिक्रूट कर सकते हैं और परफेक्ट स्किल्ड एम्प्लॉयज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्शन एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, एक स्टेप्स है जिसके थ्रू आप जो भी सबसे पहले जो पर्सन जिसने जो इनिशियल एप्लीकेंट है उसकी स्क्रीनिंग करके आप उसको फाइनली हायर करते हैं. सो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप एप्लीकेशन मटेरियल्स की कंप्लीशन करते हैं, एक इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं. इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो भी हमारे नेसेसरी टेस्ट होते हैं लाइक साइकोमेट्रिक टेस्ट, रिटन टेस्ट, इन सारे टेस्ट की कंप्लीशन के बाद उनकी रेफरेंसेस को, उनके बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की सर्च आउट करते हैं. देन उसके बाद डिसीजन का काम आता है कि आप उनको हायर करना चाहते हैं या उनको रिजेक्ट करना चाहते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले पहला स्टेप है कंप्लीटिंग एप्लीकेशन मटेरियल्स. जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग एप्लीकेंट्स बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, मटेरियल्स, रेज्यूमेज, इन सब की प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है. स्टेप 2, आफ्टर दैट देयर इज अ नीड ऑफ conducting an interview conduct कराना. rather then third part is necessary test conduct कराना like administered before or after the interview, उसकी body language, उसके examples test हैं like cognitive, clerical, mechanical, personality test. These are some examples of tests which we have to conduct while recruiting the persons. बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन लेना फॉर फर्दर बेसिक इंफॉर्मेशन, रेफरेंसेस चेक के लिए, उनके सिलेक्शन प्रोसेस के लिए प्रॉपर एंड डिटेल्ड एनालिसिस करना, वो सारा उसका प्रोसेस है. नेक्स्ट मॉडल है कैसे आप परफॉर्मेंस जो हमारी है उसको आप प्रेज कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. एवरी इंडिविजुअल वांट्स सम फेम इन मॉनेटरी टर्म्स आर इन qualitative aspects. So there are this chart shows basically the skills, activities and output. Every employer wants to maximize their profit, and with the help of HRM, real manpower, we can motivate the employees. There is a need to motivate the employees. If employee is performing better, then there is a need to motivate them with the help of performance appraisal.
परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम क्या हमारा होना चाहिए, कैसे आप उसको रिवार्ड देंगे, उसकी पॉलिशिंग कैसे करेंगे, उसकी स्किल्स को कैसे एनहांस करेंगे, उसको पनिशमेंट कैसे देंगे। देन टेक्निक्स क्या है इवैल्यूएटिंग मैनेजर्स, देयर आर सम सर्टेन टेक्निक्स जिसके थ्रू सबसे पहले है आप सुपीरियर्स के थ्रू उनका इवैल्यूएशन कराया जाए। देन कलीग्स जो कि उनके पेयर ग्रुप्स होते हैं उनके थ्रू आप कलीग्स के थ्रू इवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसके भी कुछ सर्टेन मेथड्स हैं, पॉइंट मेथड्स है, 360 मेथड्स है, 360 पॉइंट मेथड्स है, MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबके थ्रू आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टेक्निक्स को मैनेज कर सकते हैं। देन पीयर रेटिंग है, मींस फॉर जिस लेवल पे अगर डिपार्टमेंट 1 आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और वहां आपके कलीग्स के साथ आपका कोऑर्डिनेशन लेवल कैसा है, कैसे आप उनको हेल्प करते हैं टास्क में, तो ये सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल हो जाती हैं। और जो भी पीयर की रेटिंग्स होती हैं उनके थ्रू आपको आपके प्रमोशन में, आपके बेटर करियर डेवलपमेंट में ये आपको हेल्प करती है। सेल्फ इवैल्यूएशन मींस आपकी रेटिंग क्या है आपके लिए। देन सफर फ्रॉम लीनियंसी, यहाँ पे लीनियंसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रेज हो सकती है। देन सबऑर्डिनेट इवैल्यूएशन है, डेवलपिंग लीडरशिप में कैसे आप इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। 360 डिग्री फीडबैक मींस 360 indicates a wheel, a circle means complete analysis of an employee. So ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पर्सन्स हैं जो हर लेवल के, उन हायरार्कीज को के थ्रू उस पर्सन की जजिंग 360 डिग्री लेवल है, उसके थ्रू भी दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय। सो इस मेथड्स के थ्रू आप परफॉर्मेंस अप्राइजल को मेजर कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, आज का जो न्यू डायमेंशंस है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें नए आइडियाज को अडॉप्ट करना, नए ऑर्गेनाइजेशन की जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करने के लिए हेल्प करना। नेक्स्ट, कैसे आप प्लान कर सकते हैं, प्लान चेंजेस में प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांसेस हैं इंफॉर्मेशन के। अनप्लान्ड चेंज मीन्स विदाउट एनी प्लान आप कैसे उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज का चेंजेस होना, डेमोग्राफिक्स प्रॉब्लम्स आती हैं, परफॉर्मेंस गैप्स होता है, गवर्नमेंटल रेगुलेशंस कुछ ऐसे सर्टेन डॉक्ट्रिन्स बना दिए गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, वी हैव टू फॉलो दैट पॉलिसीज। इकोनॉमिक कंपटीशन है ग्लोबल एरा में, तो ये सारी चीजें आपकी प्लान्ड एंड अनप्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन चेंज है जो अफेक्ट करते हैं। प्लान्ड चेंजेस आपके लिए रेलिवेंट रोल प्ले करते हैं, अनप्लान्ड चेंजेस आपके लिए इरेलीवेंट रोल प्ले करते हैं। समटाइम्स ये आपके लिए फेवरेबल है, समटाइम्स ये आपके लिए एडवर्स इफेक्ट प्ले करते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, बिकॉज इंडिविजुअल हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करने में उसको प्रॉब्लम्स होती है। सो सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सबसे पहले इंडिविजुअल की जो इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करना। फियर ऑफ अननोन, कैसे हम, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। कुछ इंडिविजुअल्स इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सो इंट्रोवर्ट है मीन्स वो लिमिटेड है, उसका एरिया कंसाइज है। एक्सट्रोवर्ट है उसको ग्रेगरियस पर्सनालिटी के फॉर्म से आप जान सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो बीइंग एन HR ही शुड बी टॉकेटिव, ही और शी शुड बी टॉकेटिव मींस उसको अननोन से मिलने का कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी एक हिंड्रेंसेस रोल क्रिएट करते हैं। नीड फॉर सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना है। हैबिट आपकी जो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर द हिंड्रेंसेस जिसमें आप चेंज को लेकर के रिजिड हो जाते हैं। नाउ ओवरकमिंग, कैसे इन रेजिस्टेंस को आप ओवरकम कर सकते हो। थ्रू एजुकेशन वी कैन रिकूप इट, थ्रू पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, थ्रू नेगोशिएशन, बात करके, मैनिपुलेशन करके, कॉर्शन, डर, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, आपको चीजों को सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है। विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज वी कैन रिकूप, वी कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। Now, manager development. Being a manager, there is need to manage all those activities with the help of their technical skills, conceptual skills. इन सब तरीके से आप अपनी skills को manage करते हैं।
जो भी आपकी ट्रेनिंग्स है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, जॉब रोटेशन के थ्रू, टेम्परेरी प्रमोशंस के थ्रू, कमिटीज के थ्रू। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपके जो एलिमेंट्स है लाइक ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंसेज है, एमडीपीज है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, बिजनेस सिमुलेशंस है, एक आर्टिफिशियल मोड है जिसके थ्रू आपको रोल प्ले के लिए बोला जाएगा। जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। पीपल के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, प्रॉपर इक्वलाइजेशन होना चाहिए। कन्फ्रंटेशन एंड पार्टिसिपेशन बोथ आर क्वाइट इफेक्टिव, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज here is some questions like we have to do it. Means first of all there is a need to identify the following terms, and after that we have to find out the right questions. I hope you enjoyed the session. Thank you.